Assalamu alaikum dear students. Tashkil Hussain Kokar is here, your physics teacher. This is a lecture number 16. Topic is spherical mirrors. In previous topic, you must know about the types of reflection. Nature of reflection depends on the smoothness of the surface. For example, a smooth surface of silver reflected rays of light in one direction only. The reflection by these smooth surfaces is called irregular reflection. Most of the objects in everyday world are not smooth on the macroscopic level. The rough surface of these objects reflect the rays of light in many directions. Such type of reflection is called irregular reflection. Now we comes on the topic spherical mirrors. A mirror whose polished reflecting surface is a part of hollow sphere of glass or plastics is called a spherical mirror. In a spherical mirror, one of the two curved surface is coated with a thin layer of silver followed by a coated of red lead oxide paint. Thus, one side of the spherical mirror is opaque and other side is highly polished reflecting surface. Depending upon the nature of reflecting area, there are two types of spherical mirror as shown in figure. Number one type concave mirror, number two convex mirror. In concave mirror, let's suppose this is a sphere and a red line shows the curved surface of mirror. Now comes on terms number one, center of curvature at C point, and R shows the radius of curvature, and aperture of opening. This is the aperture of opening, and pole. This is the pole. Another is pole, and principal axis. Principal axis means diameter of sphere shows the principal axis. So now convex mirror. Convex mirror is similarly aperture, radius, principal axis. Principal axis on the curved black surface. So these are the two types of mirror: convex, concave. Concave mirror, a spherical mirror whose inner curved surface is reflecting is called concave. In concave mirror, the size of image depends on the position of the object. Both virtual and real image can be formed by a concave mirror. Convex mirror, a spherical mirror whose outer curved surface is reflecting is called concave mirror. In convex mirror, the size of the image is always smaller than the object. Only virtual and erect image is formed by a convex mirror.
Pole. It is the midpoint of curved surface of spherical mirror. It is also called vertex. Now, मतलब कॉनकेव मिरर क्या है? स्फेरिकल मिरर है, उसका इनर साइड जो है वो सरफेस वो रिफ्लेक्टिंग वाला है, उसको क्या कहते हैं? कॉनकेव मिरर। और कॉनकेव मिरर का जो साइज़ है वो इमेज डिपेंड करता है उसकी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पे। और दोनों क्या होते हैं? वर्चुअल भी होते हैं और रियल भी होते हैं, उसमें फाउंड कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं कॉनकेव मिरर पे। कॉन्वेक्स मिरर क्या है? स्फेरिकल मिरर है जिसका आउटर जो है आउटर कर्व्ड सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग होता है। और कॉन्वेक्स मिरर में जैसा कि साइज़ इमेज की साइज़ जो है वो हमेशा छोटी होती है ऑब्जेक्ट से, और वर्चुअल एंड इरेक्ट जो है इमेज वो फॉर्म करता है कॉन्वेक्स मिरर। पोल वो मिड पॉइंट है कर्व्ड सरफेस की आप स्फेरिकल मिरर की, उसको क्या कहते हैं? और उसको जो है वर्टेक्स भी कहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर, अ स्फेरिकल मिरर इज पार्ट ऑफ अ sphere. The center of sphere is called the curvature. कर्वेचर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब कर्वेचर क्या है? कि जो मतलब स्फेरिकल मिरर स्फेयर मिरर वो पार्ट है उसका, इसका स्फेयर का, और सेंटर जो होता है वो स्फेयर वो जो कर्वेचर कहलाता है। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? इट इज द रेडियस ऑफ स्फेयर ऑफ विच स्फेयर मिरर इज अ पार्ट। प्रिंसिपल एक्सिस मीन्स कर्वेचर, वो रेडियस है स्फेयर का जो पार्ट है स्फेरिकल मिरर का, उसको क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो लाइन ज्वाइनिंग है सेंटर का कर्वेचर की, जो पोल्स कर्वेचर एंड पोल्स की जो लाइन ज्वाइनिंग है उसको क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। द प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर, रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस converge to a point. This point is called principal focus. जहाँ पे कन्वर्ज कर रहा है इमेज को वो जो है प्रिंसिपल फोकस कहलाता है। प्रिंसिपल फोकस ऑफ मिरर, hence concave mirror are also called converging mirror, since rays actually pass through this point, therefore it is called real focus। जो उसके एक्सिस के उस पॉइंट के थ्रू पॉइंट से रेज पास करते हैं और उसको क्या कहते हैं? कॉनकेव मिरर है। अब इसको दोबारा मैं उर्दू में एक्सप्लेन करूं। आफ्टर रिफ्लेक्शन कॉनकेव मिरर जो है वो रेज लाइट पैरेलल तो प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज करता है पॉइंट पे एफ पॉइंट पे, और दिस पॉइंट जो है वो एफ जो है वो क्या है? प्रिंसिपल फोकस है ऑफ मिरर। और इसी तरीके से कॉनकेव मिरर जो है वो कहलाता है कन्वर्जिंग मिरर। कॉनकेव मिरर क्या कहलाता है? कन्वर्जिंग मिरर, सिंस रेज एक्चुअली पास थ्रू दिस पॉइंट देयरफॉर इट इज कॉल्ड रियल फोकस। और इसी तरीके से रे जो है वो उसी पॉइंट से पास करती हैं, उसको क्या कहते हैं? रियल फोकस। इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर reflection appear to come from point AF situated behind
एफ जो है वो उसके पीछे है द मिरर, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। इन अदर वर्ड्स रे ऑफ लाइट अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम एफ। और रे ऑफ लाइट वो क्या होती है, एफ फोकल प्रिंसिपल फोकस पे वो डाइवर्ज हो जाती है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर आर आल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर। कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहलाता है। द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर is virtual focus because the reflected rays do not actually pass through it but appear to do so। अब इस प्रिंसिपल फोकस जो है वो कॉन्वेक्स मिरर जो है वो विजुअल फोकस होता है, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेज वो एक्चुअली पास नहीं होते लेकिन उसको समझा जाता है। इसी तरीके से फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या है, इट इज द डिस्टेंस द पोल टू प्रिंसिपल फोकस मेजर्ड अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। जो नीचे आप पिक्चर्स को देख रहे होंगे, एफ से जो प्रिंसिपल एक्सिस तक जो डिस्प्लेसमेंट है उसको क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। द फोकल लेंथ इज रिलेटेड टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय एफ इज इक्वल टू आर अपॉन 2। आर मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसको 2 में डिवाइड करो तो आपको क्या मिलेगा, फोकल लेंथ मिलेगी। दिस मीन्स दैट एज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज रिड्यूस्ड, और इसका मतलब क्या है कि रेडियस जो है वो कर्वेचर का रेडियस जो है वो रिड्यूस होगा, तो 2 इज द फोकल लेंथ। इसी तरह से फोकल लेंथ वो भी कम होगी ऑफ दी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओके, अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोकस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, दो ये टेबल में दिए गए हैं। कॉन्वेक्स मिरर, द फोकस लाइज बिहाइंड द मिरर। फोकस जो है वो उसका बिहाइंड द मिरर, उसके मिरर के पीछे जो है वो फोकस होता है। और द फोकस इज विजुअल as the ray of light after reflection appear to come from the focus। फोकस जो है वो विजुअल होता है और रे जो है वो रे लाइट रिफ्लेक्टेड होते हैं जब वो फोकस से जो है वो आती हैं, फोकस पे अपीयर होती हैं। इसी तरह से कॉनकेव मिरर, द फोकस इज द फ्रंट मिरर, फ्रंट ऑफ द मिरर। फोकस जो है वो मिरर के फ्रंट पे होता है। द फोकस इज रियल एज द रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्ज एट फोकस। उसकी क्या कहते हैं, रेज ऑफ लाइट जो है वो कन्वर्ज होती है फोकस से। फोकस रियल रेज जो है वो लाइट रिफ्लेक्शन जब करते हैं तो कन्वर्ज होती है एट फोकस पॉइंट, उससे कन्वर्ज होती है। अब मेन चीज़ इसमें जो जहाँ पे जो कन्वर्जेंस बने, अब मैं दोबारा इसको अपने लैंग्वेज में आपको मैं एक्सप्लेन करता चलूँ कि कॉनकेव मिरर में वो फोकस जो है वो कहाँ बनता है, बिफोर, मतलब रिफ्लेक्शन जो मिरर के पहले, मिरर से पहले, और कॉन्वेक्स में जो है वो उसके पीछे बनता है। मतलब जो मिरर है, जैसे ये कॉन्वेक्स है, बी जो है ये कॉन्वेक्स है, और उसमें जो जैसे लाइट रिफ्लेक्शन होती है वो फोकस जाके उसके पीछे बनता है। अब आप सोचते होंगे कि जब ये ओपेक होता है मीडियम, तो इसमें से जो है पास कैसे करती है, लेकिन वो पास नहीं कर रही होती है, एक्चुअली वो हमें शो कर रही होती है कि फोकस जो है ना इसके अंदर जो है ना आगे बढ़ लग रहा है, तो इससे जो है ना उसकी साइज जो है वो छोटी हो जाती है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर, लाइक प्लेन सरफेस, spherical surface also reflect light following the two laws of reflection as started for plane। कैसे, सरफेस
shows high light is reflected by the spherical surface of concave and convex mirror according to the two laws of reflection. कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर क्या है? जैसे देख इंसिडेंट रेज हैं और उसका नॉर्मल जो है यूं बनेगा, मतलब एंगल सेम बनेगी। अगर इसको हम कॉन्वेक्स को सीधी जो है ना इसका टेंजेंट बनाएं, टेंजेंट्स के साथ इंसिडेंट रे जो है यूं लग रही है और इसी तरीके से ये नॉर्मल वो बनेगी। लेकिन रिफ्लेक्टेड रे जो है वो रिफ्लेक्टेड एंगल जो बन रही है वो ये बन रही है। इसी तरीके से अगर कॉनकेव में आए तो उसका जो है ना जो है रिफ्लेक्शन कैसे बन रही है। अब इसको अगर हम नॉर्मल लें उसको, और एक इंसिडेंट रेज होंगे, दूसरे रिफ्लेक्टेड होंगे, और एंगल जो बनेगी इंसिडेंट एंगल आई से और रिफ्लेक्टेड एंगल जो बनेगी वो आर से बनेगी। अब इसमें एक्टिविटी है, एक्टिविटी कैसे करनी है? टेक अ टू कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर आर a wall polished spoon, using the outside of a spoon with the convex surface belonging outward, and hold it is one hand. Hold a pencil with its tip in the upright position in the other hand. Try to look at its image in the mirror. इज़ द इमेज इरेक्ट और इन्वर्टेड? अब इसमें चेक क्या करना है? इमेज जो इरेक्ट है या इन्वर्टेड है। इज़ द इमेज स्मॉलर और लार्जर? इमेज जो है लार्जर है या स्मॉलर है वो भी देखना है। मूव द पेंसिल अवे फ्रॉम द मिरर, वो पेंसिल को जो है ना उसको दूर करना है, और जब दूर करना है तो उसमें डज इमेज बिकम स्मॉलर और लार्जर? अगर दूर करें वो स्मॉल हो रहा है या लार्ज हो रहा है। वेदर द इमेज विल मूव क्लोज टू और फार्दर फ्रॉम द फोकस, और जो इमेज जो है वो मूव नज़दीक होगा या उससे दूर होगा फोकस से, ये भी चेक करना है। ये एक्टिविटी है बेटा, इसको करनी होगी कि क्या हो रहा है इसमें। मतलब स्पून का इनसाइड जो है वो कॉन्वेक्स है और सॉरी आउटसाइड कॉन्वेक्स है और इनसाइड जो है कॉनकेव है। तो इसको आप जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये इसमें क्या हो रहा है। और ये था आज का लेक्चर। और अब आपने क्या करना है, इसकी असाइनमेंट बनानी है, मतलब इसके नोट्स बनाने हैं। नोट्स बना के इसे कैप्चर करके मुझे व्हाट्सएप करने हैं। व्हाट्सएप करके मैं जो है उस पर मार्क्स दूँगा, और उसके बाद आप कॉपी फेयर करके वो जो अपनी कॉपी बना लें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।